اور پھر اپنی جاب کے سلسلے میں وہ واپس مسقط چلا گیا۔ اس کا شوہر ہر سال میں ایک دفعہ 1 مہینے کے لیے پاکستان آتا ہے اور چھٹی گزار کر پھر واپس چلا جاتا ہے، جبکہ وہ اپنے بڑے ساس اور سسر کے ساتھ پروفیسر کالونی جہلم میں رہائش پذیر ہے۔ اتنا بتا کر نیلوفر خاموش ہو گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ پوری بات بتاؤ، تم نے آدھی بات تو بتا دی، مگر اپنا اور اپنے بھائی کے افیئر کی بات گول کر گئی ہو، کیوں؟ زاہد نے نیلوفر کو اس کی بات ختم ہونے کے بعد کہا، آپ سے التجا ہے کہ آپ اس بات کو مزید مت کوڑے دیں اور ہمیں جانے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ نیلوفر نے زاہد کی منت کرتے ہوئے کہا، میں نے وعدہ تو کیا ہے کہ تم دونوں کو جانے دوں گا، مگر پوری کہانی سننے کے بعد اب بتاؤ کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ کیوں اور کیسے چکر چلایا تم نے؟ زاہد اب ایک بہن کی زبانی اپنے ہی بھائی کے ساتھ اس کیش کی داستان سن کر مزہ لینے کے موڈ میں تھا۔ جب نیلوفر نے محسوس کیا کہ یہ بغیرت پولیس والا اس طرح ان کی جان نہیں چھوڑے گا تو اس کو چاروں نچار اپنی کہانی مزید سنانا ہی پڑی۔ نیلوفر نے ہچکچاتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی بات دوبارہ شروع کی، سر بات یہ ہے کہ یہ جوانی بڑی ظالم چیز ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی کو زیادہ تر شادی کے بعد ہی میاں بیوی کے تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ اتنا کہہ کر نیلوفر کی زبان جیسے لڑکھڑانے لگی اور وہ رک گئی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ شرم کے مارے اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ نیلوفر نے اپنی بات کو روک کر زاہد اور اپنے بھائی جمشید کی طرف دیکھا تو اس نے ان دونوں کو اپنی طرف ہی دیکھتے پایا۔ ان سے نظریں ملتے ہی نیلوفر نے اپنے ماتھے پر آتے ہوئے پسینے کو ہاتھ سے صاف کیا اور اپنے منہ میں آتے ہوئے تھوک کو نگل کر اپنی بات دوبارہ سٹارٹ کی۔ جب میری شادی کے 1 مہینے بعد میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو میرے لیے اپنے شوہر کے بنا رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ دن تو گھر کے کام کاج میں گزر جاتا، مگر رات کو اپنے بستر پر اکیلی لیٹتی تو اپنا بستر ہی مجھے کاٹنے کو دوڑتا، مگر میں جیسے تیسے کر کے اپنے شوہر سے دوری کا صدمہ برداشت کرنے لگی۔ اس دوران مجھے محلے کے لڑکوں اور کچھ اپنے کزنوں میں بھی دوستی کی آفرز بھی کی، مگر آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی لڑکی کا چکر کسی لڑکے سے سٹارٹ ہو جائے تو اس قسم کی بات زیادہ دیر تک لوگوں سے چھپ نہیں سکتی۔ اسی ڈر سے میں نے کسی اور طرف دھیان نہیں دیا اور اپنی پیاس کو اپنے ہی اندر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس طرح میری شادی کو تقریباً 1 سال ہونے کو تھا کہ چھوٹی عید آ گئی۔ میں شادی کے بعد اپنی پہلی عید منانے اپنے میکے آئی تو میرے امی ابو اور بھائی جمشید صاحب میرے آنے پر بہت خوش ہوئے۔ پھر چاند رات کو میں اپنے ہاتھوں میں مہندی اور چوڑیاں چھڑوانے موٹر سائیکل پر بھائی کے ساتھ بازار گئی۔ دکان پر بہت رش تھا اور رش کی وجہ سے عورتیں اور مرد سب ایک دوسرے میں گھسے جا رہے تھے۔ میں اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈلوانے میں مصروف تھی کہ اتنے میں ایک زوردار دھکا پڑا اور میرے بالکل پیچھے کھڑا میرا بھائی پیچھے سے میرے ساتھ چپکتا چلا گیا۔ زوردار دھکا لگنے سے میرا ہاتھ سامنے پڑی دکان کے شوکیس سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے میں جو چوڑیاں ابھی تک ڈلوا چکی تھی وہ ایک دم سے ٹوٹ گئی۔ بھائی نے گرتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس کا ایک ہاتھ میرے دکان کنڈے پر پڑا جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ بلند پر آن پڑا۔ چونکہ گرمی کی وجہ سے میں نے لان اور بھائی جمشید نے کاٹن کے پتلے لباس پہنے ہوئے تھے۔ یہ شاید ہمارے پتلے لباس کی مہربانی تھی کہ بھائی کا یوں میرے ساتھ چمٹنے سے زندگی میں پہلی بار میرے بھائی کا بلو میاں بغیر کسی رکاوٹ کے مجھے پچھلے حصے میں چپتا ہوا محسوس ہوا۔ نیلوفر اپنی کہانی بیان کرتے وقت پوری کوشش کر رہی تھی کہ جہاں تک ممکن ہو وہ اپنی زبان سے کوئی گندا لفظ ادا نہ کرے، اس لیے وہ ڈھکے چھپے الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ جمشید بھائی کو جو ہی احساس ہوا کہ اس دھکے کی وجہ سے انجانے میں اس کے ہاتھ اور بدن میرے ان حصوں سے ٹکرا گئے ہیں جو ایک بھائی کے لیے ممنوع ہے، تو وہ شرمندگی کے عالم میں مجھے سوری کرتا ہوا دکان سے باہر نکل گیا۔
इस वक्त मेरी शादी के बाद मेरे शौहर को मुझसे दूर गए 1 साल बीत चुका था और इस 1 साल में ये पहला मौका था जब किसी ने मेरे नाजुक हिस्सों को इस तरह छुआ था, और वो कोई गैर मर्द नहीं बल्कि मेरा अपना सगा भाई ही था। यूं तो मेरे भाई का मुझसे यूं टकराने का दौरानिया बहुत ही मुख्तसर था, लेकिन इस एक लम्हे ने भाई के जिस्म में क्या तब्दीली पैदा की, मुझे इसका इस वक्त तो अंदाजा ना हुआ, मगर भाई के मुझे इस तरह छूने से मेरे तन बदन में भाई की इस हरकत का शदीद असर हुआ और मेरे सोए हुए अरमान जाग उठे। मुझे अपने अंदर आज एक आग सी लगती महसूस हुई और मुझे यूं लगा कि मेरे निचले हिस्से में से कोई चीज निकल कर मेरे लिबास को लग गई है। जमशेद भाई की दुकान से बाहर निकल जाने के बाद मैंने दोबारा अपनी तवज्जो मुझे चूड़ियां पहनाने वाले सेल्समैन की तरफ की, तो मैंने नोट किया कि सेल्समैन के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। बाजी, शायद आपको अंदाजा नहीं कि चांद रात के इस रश में इस किस्म के आवारा लड़के इसी हरकतें करते हैं। सेल्समैन ने मुझे हल्की आवाज में बताया, इससे शायद मेरे भाई का हाथ मुझसे टकराते हुए देख लिया था, मगर इसको ये अंदाजा नहीं हुआ कि जिसको वो एक आवारा किस्म का लड़का समझ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना सगा भाई है। जब मुझे पता चला कि सेल्समैन ने सब कुछ देख लिया है तो मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगी और मैंने मजीद शॉपिंग नहीं की और सिर्फ वो चूड़ियां जो मेरे हाथ में पहनने के बाद टूट गई थी, मैंने इनकी पेमेंट की और जल्दी से दुकान से बाहर निकल आई। दुकान से बाहर मेरा भाई अपनी मोटरसाइकिल पर गुमसुम बैठा हुआ था। इसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझ में अपने भाई का सामना करने की हिम्मत ना थी। मैं खामोशी से अपनी नजरें झुकाए हुए आया और आकर भैया के पीछे इसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। जो ही भाई ने मुझे अपने पीछे बैठा हुआ महसूस किया, इसने मुझे देखे बगैर अपने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने के लिए किक लगाई और मुझे लेकर घर वापस चला आया। रास्ते भर हम दोनों में कोई बात ना हुई और थोड़ी देर में हम अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गए। जो ही भाई ने घर के बाहर मोटरसाइकिल रोकी तो मैं उतरकर घर का दरवाजा खोलने लगी, तो शायद इस वक्त भाई की नजर मेरी चूड़ियों से खाली हाथों पर आ चुकी थी। बाजी, आपने चूड़ियां क्यों नहीं छुड़वाई? जमशेद ने मेरे खाली हाथों की तरफ देखते हुए पूछा। वो असल में जो चूड़ियां मैंने पहनी थी वो धक्के की वजह से मेरी कलाई में ही टूट गई, तो फिर इस ख्याल से कि तुमको शायद देर ना हो रही हो, मैं ऐसे ही वापस चले आई। मैंने बिना इसकी तरफ देखे इसको जवाब दिया, अच्छा बाजी आप चलो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ये कहते हुए जमशेद मुझे दरवाजे पर छोड़कर अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं चला गया। मैं अंदर आई तो देखा कि रात काफी होने की वजह से अम्मी अब्बू अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। मैं अपनी शादी से पहले वाले अपने कमरे में आकर बैठ गई। दुकान में पेश आने वाले वाक़े की वजह से मेरी सांसें अभी तक संभल नहीं पाई थीं। कुछ ही देर बाद मुझे मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर अंदाजा हो गया कि भाई घर वापस आ चुका है। रात काफी हो चुकी थी और इसलिए मैं भी सोने के मुतालिक सोच ही रही थी कि जमशेद भाई मेरे कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक प्लास्टिक का शॉपिंग बैग था जो इसने मेरे करीब आकर बेड पर रख दिया और खुद भी मेरे साथ मेरे बिस्तर पर आन बैठा। अब मुझे भाई के साथ इस तरह एक ही बिस्तर पर बैठने से शर्म के साथ साथ एक उलझन भी होने लगी और इस वजह से मैं भाई के साथ आंख से आंख नहीं मिला पा रही थी। कमरे में एक बुढ़िसरार खामोशी थी और ऐसा लग रहा था कि वक्त जैसे थम सा गया हो। जब भाई ने देखा कि मैं अपने पहलू में रखे हुए शॉपिंग बैग की तरफ ना तो नजर उठाकर देख रही हूँ और ना ही इसके मुतालिक कुछ पूछ रही हूँ, तो थोड़ी देर बाद भाई ने वो मेरे पास से वो बैग उठाया और वो चूड़ियां जो कि मैं दुकान में चुरवा रही थी वो बैग से निकल कर मेरी गोद में रख दी और बोला, बाजी मैं आपकी चूड़ियां दोबारा ले आया हूँ। मैंने इसकी बात सुनकर अपनी नजरें उठाई और पहले अपनी गोद में रखी हुई चूड़ियों की तरफ और फिर भाई की तरफ देखा और बोली, रहने देते, तुमने क्यों तकलीफ की? तकलीफ की क्या बात है बाजी, आपको ये चूड़ियां पसंद थी सो मैं ले आया। भाई ने मेरी बात का जवाब दिया। भाई की बात और लहजे से ये एहसास हो रहा था कि वो दुकान वाली बात को नजरअंदाज करके एक अच्छे भाई की तरह मेरा ख्याल रख रहा है।
जमशेद भाई का रवैया देखकर मेरी हालत भी नॉर्मल होने लगी और मेरे दिल में भी अपने भाई के लिए बहन वाला प्यार उमड़ आया। अच्छा, रात काफी हो चुकी है, इसलिए तुम जाकर सो जाओ, मैं सुबह चूड़ियां अम्मी से छुड़वा लूंगी। मैंने भाई की लाई हुई चूड़ियों को बेड की साइड टेबल पर रखते हुए कहा। सुबह ईद है और चांद रात आज, और आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि चूड़ियां चांद रात को ही छुड़वाई जाती हैं। लाए, मैं आपके हाथों में चूड़ियां चढ़ा देता हूँ। इससे पहले कि मैं इसको रोक पाती, जमशेद ने एकदम मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और टेबल पर पड़ी चूड़ियों को मेरे हाथ में चढ़ाने लगा। अपने नरम और नाजुक हाथ अपने भाई के मजबूत हाथों में महसूस करके मेरी वो सांसें जो अभी कुछ देर पहले ही बामुश्किल संभली थी, वो दोबारा तेज होने लगी। मुझे जो ही अपनी इस बदलती हुई हालत का एहसास हुआ तो मैं अपने भाई के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। रहने दो भाई, मैं सुबह अम्मी से चूड़ियां चढ़वा लूंगी। ये कहते हुए मैंने जो ही भाई के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की तो मेरे हाथ की उंगलियों के ऊपर आती हुई चूड़ियों में से एक चूड़ी टूट गई, जिसकी वजह से मेरी एक उंगली जख्मी हो गई। जमशेद भाई ने जब मेरी उंगली देखी तो एकदम घबरा गया और वो मेरी उंगली को अपने मुंह में डालकर दबाने लगा। मेरे भाई की इस हरकत ने मेरे इन जज्बात को जगाया जिनको मैंने अपने शौहर के जाने के बाद बहुत सब्र और मुश्किल से सुलाया था। इनको एकदम से भड़का दिया और मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। सर से लेकर पैर तक मेरे अंदर एक करंट दौड़ गया और मैं कोशिश के बावजूद अपने आप को रोक ना पाई। मुझे अपने भाई के मुंह और गर्मी ने बेचैन कर दिया और इस बेचैनी के मारे मेरी सांसों में एक हलचल मची और मेरे मुंह से एक सिसकी से निकल गई। बेशक मेरे भाई की अभी शादी नहीं हुई थी, मगर इसके बावजूद वो शायद एक माहिर खिलाड़ी था जो ये जानता था कि जब किसी औरत के मुंह से इस किस्म की सिसकी निकलती है तो इसका क्या मतलब होता है। इसलिए मेरे मुंह से सिसकी निकलने की देर थी कि मेरे भाई जमशेद ने मेरी आंखों में बहुत गौर से झांका और इससे पहले कि मैं कुछ समझती, मेरे भाई ने एकदम मुझे अपने साथ लगा लिया। भाई की इस हरकत से मैं अपना तवाजुन खो बैठी और बिस्तर पर कमर के बल गिरती चली गई। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।